وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی کون؟ جی میں یاسر بول رہا ہوں۔ یاسر؟ جی اچھا، کہاں سے؟ جی میں ڈوڈا سے بول رہا ہوں۔ ڈوڈا؟ جی یہ کہاں پڑے گا؟ ڈوڈا ڈوڈا جی جی، کہاں پڑے گا یہ؟ جموں میں۔ جموں کشمیر؟ ہاں اچھا اچھا، جی بتائیں کیسے کیسے کال کیا؟ جی آپ کہاں سے ہو؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ اچھا، بریلی شریف کے پاس۔ اچھا، بریلی حضرات ہو آپ؟ الحمدللہ، مجھے فخر ہے اپنے آپ کو بریلوی کہنے پر سننے پر بھی۔ چلو، آپ نے کہا تھا کہ مناظرہ کریں گے، فون پر کریں گے، تو چلو فون پر مناظرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مناظرہ تو نہیں کرتا، اس کو ہم مناظرہ نہیں کہیں گے، اس کو مباحثہ کہیں گے جناب۔ چلو وہی کچھ نہ کچھ، مگر آپ تیار ہیں نا؟ الحمدللہ۔ آپ عالم ہیں؟ ہاں ہم عالم ہیں۔ اچھا اچھا، مفتی ہیں یا مولوی؟ جی مفتی ہیں یا مولوی؟ ہم مولوی ہیں۔ اچھا اچھا، مولوی ہیں۔ فراغت آپ کی کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند سے یا کہیں اور سے؟ ہاں دارالعلوم دیوبند سے۔ اچھا اچھا، تو آپ اپنے اکابروں کی وکالت کریں گے یا آپ اپنا کوئی جو ہے کیس لڑیں گے، اپنی لڑائی لڑیں گے؟ ہم اپنے اکابروں کے ساتھ جڑے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک ہم اپنے اکابروں کے ساتھ رہیں گے۔ اپنے اکابروں کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ نہیں، الحمدللہ ہم کبھی اپنے اکابروں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا اچھا، آپ اپنے اکابروں کی بات مانتے ہیں؟ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیے۔ The person you are کو ہولڈ speaking پہ لے with لیا has فون، put میرے your پاس بھی آ call رہا on تھا پر میں hold. نے کسی کا فون اٹھایا Please نہیں stay تھا۔ on the line. تھوڑا ایسے ہی رکھنا۔ جی جناب، کال کیوں کاٹ دیا آپ نے؟ جی اصل میں تھوڑا اور ساتھی کو اپنے ساتھی ساتھ اچھا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو ساتھی کو لے کے آئیں گے؟ چلیے کوئی بات نہیں، آپ تو اپنے آپ کو عالم بتا رہے تھے کہ میں عالم ہوں۔ نہیں، آپ اکیلے بات نہیں کر سکتے نا؟ میں اکیلے بات کر سکتا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں کر رہے؟ چلو کریں۔ تو آپ تو چلے گئے، آپ کو ڈر کے مارے فون بھی کاٹ کے چلے گئے۔ نہیں، اگر مجھے ڈر ہوتا میں دوبارہ فون نہیں نہ کرتا۔ اچھا اچھا، خیر کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنا جو موقف بتا رہے تھے، موضوع بتا رہے تھے کہ میں اپنے اکابروں کے ساتھ ہوں، تو میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ کیا آپ اپنے اکابروں کی بات مانتے ہیں یا بات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں؟ ہم اپنے اکابروں کی بات مانتے ہیں، بالکل صحیح میں؟ الحمدللہ۔ اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنی بات مانتے ہیں۔ تو بتائیے آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ میرا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں۔ تو آپ عالم الغیب مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی بھی اعلی حضرت ہمارے اب تک کے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے۔ آپ بھی نہیں مانتے؟ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب مانتے ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور چپ ہے بھائی، دیکھیں ایسے بات نہیں ہوگی جناب۔ میں کچھ بول رہا ہوں اس کو سنیں۔ آپ ہی کا ساتھی آپ تک کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہیں، تم جاہل ہو، بالکل کافر۔ آپ زور سے بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور دوسری بات کے بیچ میں نہ بولا کریں۔ میں نے جب آپ کی بات محبت سے سنی، پیار سے سنی اور پوری بات سنی، تو آپ بھی میری پوری بات سنیں تاکہ میرے عقیدے کو پہچان پائیں، جان پائیں۔ جناب یہیں سے شروع ہوتی ہے آپ کی بات۔
कहाँ से? ये कहा, आपके साथी ने कहा कि आप नबी को आलिमुल गैब अगर मानते नहीं तो आपने कुफ्र किया। आपके एक मौलवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना है। उसका नाम है अमानुल्लाह कासमी देवबंदी। कौन है? अमानुल्लाह कासमी देवबंदी आलिमुल गैब माना है। कब माना है और कैसे माना है, क्यों माना है? मुझे नहीं मालूम क्यों माना है, अच्छा, पर उसने माना है। कब माना है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानता है उसके ऊपर आपका फतवा क्या है? देखिए उसे कुछ नहीं, आप मुझे बता दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब, आपका फिरका, देखिए फिरका बरेलवी के अकायद व नजरियात और कुरान और हदीस से उनके जवाबात सुनिए। आप अपनी कहने आए हैं या मेरी भी सुनेंगे, ये बताएं पहले। सिर्फ आप अपनी कहेंगे? आपका अकीदा मैं सुनाता हूँ पहले। आपका अकीदा है क्या और आप कहाँ से हो? सुने, आपका अकीदा क्या है? फिरका बरेलवी के अकायद व नजरियात, आपके अकायद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब दिया गया था। इस सिलसिले में मौलाना अहमद रजा खान बरेली फरमाते हैं कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मुझे इल्म गैब है, इसलिए कि तुम इन बातों के अहल नहीं, वरना वाक़ई है मा काना व मा यकून, मा काना व मा यकून का इल्म है। और दूसरी जगह भी तहरीर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय का इल्म दिया गया है। ये कैसी बात करते हैं आप? तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्म मानते हैं वो कैसा मानते हैं और किस तरह का इल्म मानते हैं, जरा बताएं, वजाहत करें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं मानते हैं, क्योंकि यही कुरान करीम की आयत है, कुल ला यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। आप कह दीजिए आसमान और जमीन में मौजूद है, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता है। सुना? तो हमारे अकाबिर का वो हवाला पेश करें जनाब, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। यहाँ कह रहे बस ये हवाला पेश कर दीजिए। इधर सुने, हम हवाला आपको पेश करते हैं इसी किताब के अंदर। मौलाना अहमद रजा खान बरेली फरमाते हैं कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मुझे इल्म गैब है, इसलिए कि तुम इन बातों के अहल नहीं, वरना वाकई मा काना व मा यकून का इल्म मिला है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके आला हजरत मौलाना रजा खान कहते हैं कि आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात ही नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे। देखिए, इंसान वो होता है और इल्म उसके अंदर पहचाना जाता है जो अपनी बात कहे और दूसरे की सुने। ये कैसे आलिम हैं आप कि आप अपने आप को आलिम कहला रहे हैं मगर इल्मी सलाहियत आपके अंदर मौजूद नहीं है? तो क्या इल्मी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए कि आप इसीलिए बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुनो, मैंने पूछा आपसे कि मुझे वो हवाला पेश कर दीजिए कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा गया हो, मगर मैं तुम्हारे घर से ऐसे सबूत पेश करूंगा इंशाअल्लाह कि तुम्हारे घर के मौलवियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना है और मैंने मना किया कि हमारे बुजुर्गों ने इस चीज को मना किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आलिमुल गैब की निस्बत करना ये दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने नहीं 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 नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मानकर आलिमुल गैब कह सकते हैं, समझे जनाब? मगर आप मुझे, ये कौन कह रहे हैं? मौलाना अमानुल्लाह कासमी देवबंदी। अच्छा, मौलाना अमानुल्लाह कासमी देवबंदी जी। और आपका इस बारे में क्या गुमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे? जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही है, कैसे बोल रहे हो यार? दूर आवाज, माइक दूर क्यों करते हो? आप बताओ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोले। आप बताओ कि आलिमुल गैब थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नहीं? हमारा अकीदा ही जो है ये क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम मानते हैं, हमारा अकीदा क्या है पहले मैं वो बता दूं आपको? हाँ बताओ। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देता हूं ताकि हमारे पहले अकायद से जो है आप बाखबर हो जाएं, बेखबर ना रहें। ठीक है, बाखबर हो जाना है। हाँ, तो जो लोग हमारी तरफ झूठा इल्जाम लगाते हैं
खुद आलिम उल गैब कहते हैं और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बरेलवी आलिम उल गैब कहते हैं। बहरहाल हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इल्म गैब का अकीदा रखते हैं और ऐसा अकीदा। देखिए भाई चुप हैं, जब मैं बोल रहा हूँ, जब आप बोले मैं नहीं बोला। चलो ठीक है, ये इल्मी हैसियत नहीं है आपकी, इल्मी सलाहियत नहीं है आपकी। चलो इल्म वाला वो होता है जो अपनी बात कहे और दूसरे की सुने। चलो सुनाई। मैं एक आम इंसान होके इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात को सुन रहा हूँ, तो मैं ये जब मैं आपकी बात को सुन सकता हूँ तो अपनी बात कह भी सकता हूँ। और बात उसी को कहते हैं जो कि एक की सुनी जाए, ठीक है। हाँ, और फिर जब कोई दूसरा बोले तो फिर उसकी बात को भी सुना जाए। अपनी बात को कहो और दूसरे की सुनो। चलो सुनाई। तो हमारा जो अकीदा है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु, खामोश रहेंगे या नहीं जब तक मैं बोलूं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अता किया या नहीं? अता किया, अता किया। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बताइएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हाँ हादिस है, उसकी हद है, ला महदूद नहीं है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म ला महदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है वो ला महदूद है, उसकी कोई हद नहीं। हमारे नबी का इल्म हादिस है, उसकी हद है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अताई है, जाती नहीं है। समझ रहे हैं जनाब? बताओ। अब मैं और थोड़ा सा समझा दूं आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए और दूसरे लोगों को धोखा ना दें आज के बाद इल्म गैब के ताल्लुक से। तो हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म 7 समंदर, एक मिसाल के से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के मुकाबिल हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म उन 7 समुद्रों में से जिस तरह चिड़िया चोंच में पानी लेती है, कतरा लेती है, उस चिड़िया के चोंच के कतरे के मुकाबिल भी हम जो है उसको नहीं बता सकते। मान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म समंदर के 7 समंदर के कतरों, 7 समंदर के पानी से, 7 समंदर के इल्म से हमारे नबी का इतना इल्म जैसे चिड़िया की चोंच में एक कतरा। और तमाम कायनात का इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा ही है जैसा इल्म हमारे नबी का अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म के मुकाबिल हमारे नबी का इल्म उम्मत के सामने 7 समंदर। ये तुम्हारे आलिमों ने भी माना है, तस्लीम किया है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बात बता रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो वो दलील पेश कर दूंगा आपके सामने। खैर, उन्होंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना, मगर हमारा अकीदा नहीं है कि हुजूर आलिमुल गैब है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया, और इतना अता किया, इल्म गैब खास भी अता किया। अच्छा जी, जिन चीजों पर देवबंदियों का इनकार है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास इल्म भी अता किया। अच्छा, वो खास इल्म क्या है? जो 5 चीजें खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, जानते हैं आप? हेलो, बताइएगा। आप नहीं जानते? हेलो, जी बोल रहा हूँ, आप नहीं जानते उन 5 इल्मों के ताल्लुक से? हाँ बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ कि जो खास 5 इल्म, जो गैब के 5 इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, हाँ, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को हासिल नहीं है, हाँ, ये 5 इल्म हैं ऐसे। अच्छा, हाँ, मगर मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अता से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका भी इल्म अता किया। अच्छा, वो 5 इल्म ये हैं कि पानी कब बरसेगा, यानी बारिश कब होगी। अच्छा, माँ के पेट में, औरत के पेट में क्या है, हाँ, कौन क्या कमाएगा, क्या खाएगा, अच्छा, कहाँ मरेगा। हाँ, ठीक है जनाब, ये जो इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये आपने बताया। यहाँ से सवाल उठता है, उठा दीजिए सवाल। सुनिएगा। जी बिल्कुल सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा कि हमारे नबी ये भी जानते थे कि दुनिया में क्या होगा। हाँ, अल्लाह की अता से। हाँ, ये भी जानते थे।
ہاں، عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ لڑکی ہے یا لڑکا؟ یا میرا وصال کب ہوگا؟ ہاں یہ بھی جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا تھا کہ ان کو جب پتا تھا کہ میرا چاچا ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ ایمان کی دعوت. آپ صحیح سے بولیں، آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے، آپ کیسے بول رہے ہیں؟ صحیح سے بولیں، آپ آواز تو آ جائے آپ کی. سنو نا، بولیں. سن رہے ہو؟ جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پتا تھا ان 5 چیزوں کے بارے میں کہ دنیا میں کیا ہوگا، ہاں یہی ہے نا؟ میں نے کیا کیا بولا اس کا دوبارہ سے سن لو تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. حکمتوں کی بات مت چھیڑو، جب حکمتوں کی بات آئیں گی تو تمہارے گھر سے وہ سب ثابت کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بتاؤ نا. آپ میرے نبی کے علم کی نفی کر کے یہ میرے نبی کا کمال بتا رہے ہو یا ان کی شان و عظمت کو گھٹا رہے ہو، ان کی تنقید کر رہے ہو. جو بھی بتاؤ نا وہ 5 چیزیں. 5 چیزیں یہ ہیں کہ پانی کب برسے گا، یعنی برسات کب ہوگی، بارش کب پڑے گی. پانی کب برسے گا؟ ہاں، کوئی نہیں جانتا. بارش کب ہوگی کوئی نہیں جانتا. ہمارے نبی جانتے تھے. ہمارے نبی جانتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ جانتے ہیں. پیٹ میں کیا ہے، ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. اور کون کہاں مرے گا یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے؟ اور میرا وصال کب ہوگا یہ بہت اہم چیز ہے. یہ 5 ایسے علم ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 5 علموں کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بالکل کوئی نہیں جانتا. حضور بھی نہیں جانتے؟ نہیں، حضور نہیں جانتے. اچھا، حضور یہ نہیں جانتے کہ میرا وصال کب ہوگا؟ نہیں، حضور کو پتہ نہیں تھا. اچھا، حضور کو نہیں پتا تھا. اچھا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، یہ جانتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں جانتے تھے. اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ حضور کو اس چیز کا علم اللہ کی عطا سے دیا گیا اور حضور کو اس کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کے اوپر شریعت کا کیا فتویٰ لگے گا؟ جی ادھر سنو آپ سن رہے ہو؟ جی بالکل سن رہا ہوں. اب قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں موجود ہیں. زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے. ہاں پڑھیں. سنیے گا. جی بالکل سنا ہے. کون سی آیت ہے، کون سے پارے کی ہے، کون سی سورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 60 ہے. سورہ نمل یا سورہ نمل؟ سورہ نمل. اچھا جی سنیے گا. نمل کے معنی کیا ہو گئے؟ نمل بولتے ہیں یا نمل بولتے ہیں؟ سورہ نمل سنا ہے میں نے تو آج تک. او سنو نا یار، دیوبندیوں کے منہ سے بھی سورہ نمل سنا ہے، سورہ نمل نہیں سنا. سورہ نمل آپ کو سنائی نہیں؟ آپ نے نمل بولا تھا نا. سنیے گا. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سن رہے ہو؟ جی اللہ کیا پڑھے آپ نے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ نمل کی آیت ہے. ہاں. اچھا پارا کون سا ہے تھوڑا بتائیں گے؟ پارا تو لکھا نہیں. سورہ نمل کی آیت. اچھا آیت نمبر 60. 60. ہاں آیت نمبر 60. ہاں. آیت نمبر بھی غلط بتا رہے ہو. آیت نمبر کچھ لکھا ہے ایسے ہی، اصل میں مٹ گیا ہے. ہاں ادھر سنو. اب اس کا ترجمہ سنو. سناؤ. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان اور زمین میں ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے. اچھا ہاں اللہ کے سوا. پھر یہ بھی ہوتا کہ پھر اس آیت کے اندر یہ بھی بتا دیتے کہ اللہ اور نبی کے علاوہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اچھا آپ عالم ہیں نا؟ ہاں. مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ عالم ہیں.
मैं आलिम हूँ, आप बताइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आयत है इसमें यहाँ ये कहाँ है कि नबी गैब नहीं जानते? आपका ईमान पूरे कुरान पर है या आधे अधूरे कुरान पर? ये नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है? कुल्ला यारम माफिस समावात वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी गैब नहीं जानते हैं। ये कौन फरमा रहा है? ये कुरान की आयत बता रही है। हाँ, तो मतलब ये तो अल्लाह पाक ने उम्मत को बताया या उम्मत से रसूलुल्लाह से कहलवाया उम्मत को? ये अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने उम्मत को बताया। हाँ। या रसूलुल्लाह से कहा कि ए महबूब आप कहिए? हाँ, आप कहिए, आप कह दीजिए। खुदा ने क्यों नहीं कहा? उस वक्त मैं नहीं था वहां पे, मुझे क्या पता खुदा ने क्यों नहीं कहा। ओहो, अच्छा। खैर, इंशाअल्लाह इसकी हिकमत है अहले सुन्नत वल जमात का एक छोटा सा तालिबे इल्म बताएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो इस आयत की वजह से आप ये समझ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गैब का इल्म नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हुजूर नहीं जानते तो क्या सहाबा इकराम जानते हैं? नहीं। अच्छा, उनके बाद वाले ताबईन, तबे ताबईन? कोई नहीं। जब यहाँ इस आयत के अंदर लिखा है जमीन, आसमान और जमीन के अंदर जितनी मखलूकात हैं, किसी को इल्म, किसी को अल्लाह के सिवा किसी को गैब नहीं जानते। अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता है। अच्छा अच्छा, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। बिल्कुल। यानी तो हमारे नबी ये नहीं जानते कि मेरा विसाल कब होगा और औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का? बिल्कुल कुछ पता नहीं अल्लाह के नबी को। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, जो वली कामिल हैं इनको भी नहीं पता? बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो अकीदा है, तो अगर कोई इस अकीदे को माने, तस्लीम करे कि हमारे नबी ये जानते थे कि औरत के पेट में लड़की है या लड़का, तो आपके नजदीक उसने कुफ्र किया या वो मुसलमान ही है? बिल्कुल कुफ्र किया। बिल्कुल कुफ्र किया। हाँ, आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, अगर ये अकीदा बरेलवी ही रखे वही जो है काफिर है, या फिर अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी और चकड़ालवी, या मतलब जिस भी फिरके का इंसान हो, चाहे वो देवबंदी ही हो, मैं तुम्हारा नाम लेके कह दूं, तो वो भी काफिर है या सिर्फ बरेलवी काफिर है? आप बरेलवी का ये मतलब, आप बरेलवी हजरातों का ये मानना है कि अल्लाह के सिवा और भी जानते हैं? हाँ? अल्लाह की अता से जानते हैं। हाँ, अल्लाह की अता से जानते हैं। हाँ? जी जी, मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो इल्म है वो जाती है और हमारे नबी का जो इल्म है वो अताई है, तो यहाँ तो कुफ्र का कोई शायबा ही नहीं है। इधर सुनो जी। आप तो पहले कह रहे तो नबी आलिमुल गैब है। मैंने कब कहा कि हुजूर आलिमुल गैब है? झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने तो मना किया है। और पहले ही आपने कहा ना आलिमुल गैब है। अरे वो झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई भाईजान आपको? यार तौबा कीजिए पहले झूठ से, फिर आगे की बात बाद में होगी। अच्छा, आप नहीं कह रहे हो? मौलाना अहमद रजा खान बरेली तो फरमाते हैं ना। तो दिखला दीजिए, सबूत दे दीजिए कि उन्होंने कहा हो कि हुजूर आलिमुल गैब है। सबूत पेश कर दीजिए भाई। सबूत फतावा रिजविया पेश कर दीजिए मेरे पास सबूत। मैंने उन्हीं का हवाला बताया। मैंने वो जो अकीदा बोला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से जो आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है, मैंने वही बोला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जाती है और हमारे नबी का अताई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म जो है वो लामहदूद है, उसकी हद नहीं, और हमारे नबी का जो इल्म है वो हादिस है, उसकी हद है। समझे जनाब? मैंने तो आला हजरत का ही अकीदा बोला है, आप कैसे बोल रहे हैं जनाब? यहाँ तो मौलाना अहमद रजा खान बरेली पेश कर दीजिए, हवाला पेश कर दीजिए। मेरे व्हाट्सएप पे आपका मैसेज है, तो जल्दी से भेज दीजिए मेरे इसी नंबर पे। फतावा रिजविया पेश कर दीजिए। हुजूर ने अगर हुजूर को कहा हो कि हुजूर आलिमुल गैब हैं, हम आलिमुल गैब मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हवाला पेश कीजिए भाई। हवाला है ना, फतावा रिजविया खोलो ना, सफा नंबर। भाई मैं नहीं खोलूंगा, दावा आपने किया है, दलील आप पेश करेंगे। आप तो आलिम हैं, इतना भी नहीं जानते हजरत? मेरे पास फतावा रिजविया नहीं है। देखिए, बगैर देखे कोई बात नहीं बोलते हजरत। दावा आपका है, दलील आप पेश करेंगे। और जनाब यह हमारे पास अच्छा चलिए, सब छोड़िए, चलिए अब मुझे आप हजरत ये बता दीजिए कि जैसे मेरा अकीदा ये है कि हमारे नबी इस चीज का इल्म जानते हैं कि माँ के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का, तो मेरा ये अकीदा है, मान लीजिए। तो मेरे ऊपर
शरीयत का क्या हुक्म आएगा? मैंने ये कुफ्र किया या मैं अभी भी मुसलमान हूँ? अभी आप मुसलमान ही नहीं हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। किस वजह से? उसकी वजह? उसकी वजह? हाँ, उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि आप नबी को आलिमुल गैब मानते हो। नबी को आलिमुल गैब मानना बिल्कुल देखिए, हालांकि आलिमुल गैब माना वो काफिर है। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो आलिमुल गैब माना ही नहीं, ना हमारे अकाबिरों ने माना। फिर भी बार बार मेरा अकीदा सुनने के बावजूद आलिमुल गैब तुम्हारा अकाबिर है मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है ना वो। तो पेश कर दीजिए हवाला, मैं तो मांग रहा हूँ आपसे, आप पेश नहीं कर रहे हैं। फतावा रिजविया खोलिए। देखिए, जब मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं तो आला हजरत के ऊपर इल्जाम लगाने में क्या जा रहा है आपको? मैंने तो बोला ही नहीं। 796 सफा नंबर 796 फतावा रिजविया खोलिए। बताइए क्या लिखा है वहाँ? लिखा है कि मौलाना अहमद रजा खान बरेली फरमाते हैं। सुना? सुनाए सुनाए। आप कॉल नहीं काटिएगा भाईजान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय का इल्म दिया गया। जी बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है। किस जगह लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? दिखला दीजिए, बस यही हवाला भेज दीजिए। मौलाना क्या कहते हैं, अहमद रजा खान बरेली फरमाते हैं ना, तो मुझे यही तो हवाला चाहिए। हाँ, यही हवाला चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। हमारे आलिमों ने अगर ये लिखा है हुजूर आलिमुल गैब हैं, बस यही वाला हवाला चाहिए। यही हवाला भेज दीजिए आप। फोटो पर भेजूं? हाँ, मेरे मोबाइल पे भेजिए स्क्रीनशॉट करके। चलो ठीक है। और अपना मत भेजना भाई, ठीक है? जी, मैं भेजता हूँ। किसी और का मत भेजना, आला हजरत का भेजना। और आपने फतावा रजविया का नाम लिया है और यही कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है ये? मौलाना अहमद रजा खान बरेली है ना? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यही है, यही। ठीक है, भेजो। अच्छा, अब अपने घर का एक कुफ्र सुनते जाइए। आपने ये कहा कि औरत के पेट में बच्ची है या बच्चा कोई नहीं जानता, और जो ये अकीदा रखेगा वो काफिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अगर कोई बरेलवी अकीदा रखेगा सिर्फ वही काफिर, या देवबंदी भी अगर ये अकीदा रखेगा वो भी काफिर? सब काफिर। सब काफिर? बिल्कुल। आप कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो चलिए हवाला सुन लीजिए भाईजान। थानवी जी आपके काफिर हो चुके हैं। हाँ, थानवी जी आपके काफिर हो चुके हैं आपके कहने के मुताबिक। थानवी साहब ने कब कहा? इंशाल्लाह मैं आपकी तरह नहीं करूंगा कि वहां से देख लीजिए वहां से देख लीजिए। मैं हैंड टू हैंड आपको बता भी रहा हूं और इसका हवाला भी पेश करूंगा। हवाला व्हाट्सएप पे पेश करिए। जी जी बिल्कुल करूंगा इंशाल्लाह। किताब का नाम सुन लीजिए। सुन लीजिए। किताब का नाम है हिकायत औलिया। और बात को मेरी पूरी सुनना भाईजान, ठीक है? गुस्से में आके फोन मत काट दीजिएगा, ठीक है? और बोलने भी मत लगिएगा बीच में जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए। किताब का नाम हिकायत औलिया, और इस किताब के मुसन्निफ हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ थानवी साहब। बिल्कुल। कुतुब खाना नईमिया देवबंद, बिल्कुल, जहां से ये छपी है उसका एड्रेस दिया है। तो इसकी हिकायत नंबर भी सुन लीजिए, हिकायत नंबर 147। हिकायत औलिया मेरे पास है। बिल्कुल, मैं अभी जी निकाल लीजिए। मेरे पास है साअत औलिया, हिकायत औलिया नहीं। अरे तो आप तो कह रहे थे कि मेरे पास हिकायत औलिया। अरवाह सलासा है आपके पास? हाँ, अरवाह सलासा है? नहीं नहीं। अरवाह सलासा या हिकायत औलिया, इन दोनों में से कोई एक किताब उठाओ। चलो बताइएगा। अच्छा अच्छा, चलिए बताता हूँ तो मैं। हाँ। जी देखते हैं हिकायत औलिया और हिकायत नंबर 147। खान साहब ने फरमाया कि मौलाना नानोतवी फरमाते थे। अच्छा, ये मौलाना नानोतवी जो है इनको तो जानते होंगे आप? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन है ये? ये मौलाना नानोतवी। इनका नाम क्या है? नानोतवी साहब ये देवबंद के उस्ताद हैं। उस्ताद हैं? बिल्कुल। इनका नाम क्या है? इनका नाम